فیسکو سب ڈویژن بیہل روڈ آفس کی عمارت کے افتتاح سے عوامی مسائل میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ ان خیالات کا اظہار MNA ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلہ نے بیہل روڈ آفس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر MPA عامر عنایت خان شہانی، ایکسن وابڈا انجینئر آفتاب علی قریشی، SDO بیہل ڈویژن محمد شاہد عظیم، چیئرمین ہائیڈرو الیکٹرک یونین محمد اسلم، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی محمد ارشد چھینا، SDO چودھری صغیر اصغر بھی موجود تھے۔ چھینا گریڈ ہو یا بکھر گریڈ، 132 kV بیہل گریڈ اور اس کے ساتھ ساتھ بکھر ڈویژن کی بلڈنگ اور اس کے ساتھ جھنگ روڈ سب ڈویژن کی بلڈنگ اور اس کے ساتھ بکھر رورل سب ڈویژن کی بلڈنگ، اور آج ہمارے درمیان ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، MPA صاحب موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایکسین صاحب جناب آفتاب علی قریشی صاحب نے اتنی محنت کی ہے کہ لیسٹ پاسبل ٹائم میں ٹھیکیداروں کو، اپنے محکمے کے سول ورکس والوں کو، اپنے افسران بالا کو اور ہم سب کو اس قدر انہوں نے محنت کی ہے کہ آج ہماری اس بلڈنگ کا ایگریمنٹ 28 فروری کو ختم ہو گیا ہے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد ہمیں نیا ایگریمنٹ نہ کرنا پڑے اور ہم اپنی نئی بلڈنگ میں شفٹ ہو جائیں۔ تو اس تقریب میں میں اپنے ایکسن صاحب کا بھی اور اپنے SC صاحب کا اصغر حسین قزل باش صاحب کا جو کہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کا اور اپنے افسران بالا کا، اپنے چیف ایگزیکٹو کا، SC صاحب کا، سب کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں اپنی بلڈنگ میں شفٹ ہونے کا موقع عطا کیا ہے۔ کہ محکمہ 50,000 روپیہ پر منتھ کرایہ پے کر رہا تھا، 4 سال میں اس بلڈنگ کا کرایہ پورا ہو جانا ہے جو جس اماؤنٹ سے یہ بنی ہے۔ تو کتنی بڑی اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر نعمت ہے یہ بلڈنگ کہ ہم معزز سامعین، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات مزید اجاگر کرتا چلوں کہ فیسکو سب ڈویژن بیہل روڈ ہمتن گوش ہو کر اپنے معزز صارفین کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، جس کے لیے سب ڈویژن سینٹر نے 2 موبائل نمبر بھی انٹروڈیوس کرائے ہوئے ہیں جو ہر وقت جس کو اتھارٹی اس کو چیک کرتی رہتی ہے۔ اگر کسی بندے کو کوئی پرابلم ہے، کسی بھی قسم کی شکایت ہے، تو وہ اس کو دفتر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ موبائل نمبر اس کے علاقے کا اس کے بل پہ لکھا ہوا ہے، وہ فون کریں گے، میرا نمبر بل پہ لکھا ہوا ہے، جس وقت فون کریں گے، رات کو 1 بجے 2 بجے جب مرضی ایمرجنسی میں فون کریں، فون ہم اٹینڈ کرتے ہیں۔ ہمارا سٹاف 24 گھنٹے، ہماری گاڑی 24 گھنٹے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ MNA صاحب بیہل روڈ سب ڈویژن وجود ہی چاہیے تے ایدا افتتاح نوتک بلڈنگ وچ ہویا۔ ایک ریکویسٹ کی تھی اساں تو کو واپس اتوں بلاون دا مقصد ہی ہے سارا کچھ یہ ہے کہ ریکویسٹ کی تھی اساں بھئی سارے واسطے پرابلم ہے، اساں بھی تواڈے ووٹر بھی ہیں، علاقے دے بھی ہیں، سٹاف دا پرابلم ہے کہ ایک کرین دا بندوبست کیتا ونجے۔ تساں وڈے لوگ ہو، تواڈی سنی ویندی ہے۔ اج ایک شرط رکھدا میں اپنے محکمے تے اس چھینا برادری تے، اگر MNA صاحب چاہیں تو شام تو پہلے کرین بکر پہنچ سکتی ہے یا نہیں پہنچ سکتی؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو جی، پہنچ سکتی ہے۔ یہ فائدہ کہنا ہونا ہے، پبلک دا فائدہ ہونا ہے، سٹاف دا فائدہ تو ہونا ہی ہونا ہے، پبلک دا فائدہ ہونا ہے۔ یعنی ٹرانسفارمر ہے جہاں سڑتے 4 گھنٹے لگتے ہیں کم از کم ٹرانسفارمر کو لہیں دے تے چڑھیں دے۔ کرین کتنا لیندی ہے؟ 15 تو 20 منٹ۔ مہربانی کر کے ڈھانڈلہ صاحب ایک کرین دا خصوصی طور تے بندوبست سب کر کے دیتا ونجے اور خاص طور اسے بیہل روڈ کے واسطے ایشو کی تھی ونجے۔ بہت بہت مہربانی ڈھانڈلہ صاحب، یہ موقع اللہ ولا صاحب کو ایک دفعہ دیتے جو اس بلڈنگ دا محکمے دا فائدہ ہی دے چوئے کہ سارا ادھر اگریمنٹ ہے جیسا 45,000 روپیہ کرایہ محکمہ پے کر رہے ہیں۔ اور اس اگریمنٹ تو بعد تقریباً 52-53,000 روپیہ وہ ہوئے سی، محکمے دا یہ فائدہ ہو گئی ہے، چھینا برادری دا یہ فائدہ ہو گئی ہے کہ اصلو سب ڈویژن چھینا برادری دے گھر ملک صاحب کلے گئے ہیں۔ ملک صاحب بیٹھے، ملک صاحب تمہاری بھی مہربانی، تسے تک گھنا ہو۔ ملک صاحب داس صاحب سارے بڑے محسن ہیں، یہ تھوڑے میں جذبات کریں دے پہنے انہوں نے اپنی جہاں تے بھی بجا ہیں۔
रिक्वेस्ट करे सा सारी सब डिवीजन 38,000 कनेक्शन ते पहुंच गई है। डांडा साहब एक प्रपोजल भेजी है एक्शन साहब, झांग रोड ते बेल रोड को मिला के 74-75,000 कनेक्शन हो गए जी। एक प्रपोज भेजी है सब डिवीजन दी बेल सब डिवीजन एक और इंशाल्लाह जल्द तो जल्द डांडा साहब अप्रूव करा के देसी और मलिक साहब दा छीना साहब दी उससे बिल्डिंग बेल रोड सब डिवीजन बन सी, एक छीना सब डिवीजन बन गए सी। ख़ास तौर पर वापडा के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डॉक्टर साहब ने जो काम करवाए हैं, ये जिस तरह आमिर अनायत खान शानी साहब फरमा रहे थे कि ये लॉन्ग रन बेनिफिट वाले काम हैं। अगर वो ग्रिड बनता है, आज ये इस ग्रिड का शायद इतना बेनिफिट नज़र नहीं आएगा, 10 सालों के बाद पता चलेगा कि बखर ग्रिड से जिस तरह बुरा हाल हो गया था ओवरलोडिंग का, इस ग्रिड की ज़रूरत उस वक्त महसूस होगी और उस वक्त ये ग्रिड शायद बनना ही मुमकिन हो कि ना। आज फैसिलिटीज़ थी, डॉक्टर साहब मेहरबान थे, इन्होंने बनवा दिया। इसी तरह और बहुत सारे वापडा के मुतलका काम इन्होंने करवाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ दीगर डेवलपमेंट के काम भी बखर को इतने ज़्यादा मिले हैं कि शायद तारीख़ में इनका कोई मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा मैं डॉक्टर साहब का ख़ास तौर पे आमिर अनायत खान शानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बखर के लिए तरक्याती कामों के लिए हर वक्त कोशां रहते हैं और इतने पुरखलूस कि इसका कोई जवाब नहीं। अभी भी देखें कि डॉक्टर साहब ने इतनी बातें करके फिर भी बखर के सार्फिन के लिए उनकी मौजूदगी और उनकी गैर मौजूदगी में ये कहा है कि उनको चक्कर न लगवाया करें। ये है उनकी एक लीडरशिप। ये शायद उनको मुतालबा है या नहीं, लेकिन ये इन मसाइल को समझते हैं कि ये ऐसे मसाइल आते हैं, इस वजह से ये बातें कर रहे हैं। इसी वजह से उनकी शख्सियत हर दिल अजीज शख्सियत है, हर दिल को, हर जान को, हर शख्स को प्यारे हैं और हमारे भी प्यारे हैं, सब के प्यारे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इसी तरह आप बखर के लिए तरक्की के काम करवाते रहें। शानी साहब आपको साथ एक ये भी बखर के लिए गनीमत हैं कि ऐसे एनर्जेटिक और 24 घंटे अवेलेबल हर वक्त बखर के अवाम के लिए सोचने वाले MP हमें मिले हैं और इसी वजह से ये इनका दूसरा टर्नओवर है और तीसरा टर्नओवर भी इंशाल्लाह इन्हीं का होगा, डॉक्टर साहब का होगा, इनका होगा। मेरी जब तानियात हुई थी बखर में तो डॉक्टर साहब को इससे पहले भी बखर के लोगों के लिए ना काफ़ी सोच विचार थी, क्योंकि बखर में ज़्यादातर जो ना वोल्टेज प्रॉब्लम ज़्यादा होता था। अमूमन लोगों के पास से वोल्टेज कम होने की वजह से काफ़ी अशिया भी जल जाती थी, उनके जो ना कोई मोटरें चलती थी, ना कोई बात करती थी। तो जब मेरी तानियात हुई थी तो डॉक्टर साहब ने स्पेशली मुझे मीटिंग ली थी कि जनाब यहाँ पे बहरान है वोल्टेज का, और इस सिलसिले में जनाब आमिर शाहानी साहब ने भी मेरे साथ मीटिंग की थी। तो उन्होंने कहा जी हमें जो ना इसका कोई जल्द से जल्द हल निकाला जाए। तो मैंने उनको अपनी टेक्निकली सजेशंस भी दी थी कि जी वो ये जो ना छीना ग्रिड जिसकी काविशों की वजह से, इन लोगों की वजह से छीना ग्रिड बना। फिर हम जल्द से जल्द CO साहब से मिले, उनसे कहा कि जनाब इनका लोड जो है ना जल्द से जल्द छीना ग्रिड पे अब ये शिफ्ट किया जाए कि जैसे जो ना बर्डन हट जाए 132 kV बखर ग्रिड से। तो CO साहब ने भी डॉक्टर साहब साहब की जो ना गुजारिश को फ़ौरन एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने शिफ्ट कर दिया इधर। अब यहाँ पे फिर हमारे प्रॉब्लम आते थे कि फॉल्ट आ जाता था किसी फीडर वगैरह पे, स्टाफ को उधर से आना पड़ा था। यहाँ पे हमारी ज़मीन भी थी अपनी। तो आज मेरा स्टाफ तो ऐसे महसूस करता है जैसे बंदा कोई किराएदार अपना किराएदार का घर, किराए वाला घर छोड़ के जब अपने ज़ाती मकान में आता है, जो उसकी खुशी होती है वो उस मालिक के मकान को पता होगी कि इतनी खुशी होगी। स्टाफ को भी आज इतनी खुशी हो रही है। और इंशाल्लाह मैं अपने अथॉरिटी CO साहब की जानिब से, अपने AC साहब असगर कदम बादशाह की जानिब से और तमाम अपने बेल रोड के सब डिवीज़न के स्टाफ के हवाले से मैं मुकम्मल तावन का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे स्टाफ की तरफ से, मेरे अफसरान की तरफ से, हमारे फेसको की तरफ से आप लोगों को
किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी और कंज्यूमर को बर वक्त अटेंड किया जाएगा, उसकी शिकायत का इजाला किया जाएगा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पे आज मुबारकबाद मैं डॉक्टर साहब को दूंगा कि अफसरान जानते हैं, मेरे ख्याल शायद आम लोग इतना नहीं जानते। मेरे ख्याल अयूब खान के दौर के बाद जी ये पिछले 8 साल में जितना वापडा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है इस ज़िला में, बखर की तारीख में नहीं हुआ। जो हुआ था अयूब खान के दौर में, ये कोई ज़बानी कलामी बातें नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है। जब ज़िला बना था तो 2.5 लाख थी आबादी बखर की, अब तकरीबन 20 लाख है आबादी की। तो ज़ाहिर है जो क्या 2.5 लाख के क्या हालात होंगे उस टाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाहिर है तब्दीली थी। बदकिस्मती से मैं डॉक्टर साहब का इसलिए इसमें जिक्र करूंगा कि उनसे पहले आज तक किसी की ये सोच ही नहीं रही है। अभी भी हम हंसते भी हैं, बात भी करते हैं जी, एक्सीएन साहब से भी रिक्वेस्ट है, एसडीओ साहब से भी है कि आम आदमी की सोच वही खंबा है जी, मेरा एक खंबा जी। अगर आप वोट के हिसाब से जाएंगे, 1 खंबा 2 खंबा, ये इतने मसाइल हैं कि बेतहाशा हैं जी। उसमें आप जितनी हमारी हेल्प कर सकेंगे, प्रैक्टिकली हमारी हेल्प वो होगी। बाकी ये जो काविश है डॉक्टर साहब की और हमारे ग्रुप की पिछले 8.5 साल में, वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। चाहे आप कितने, हमारा हल्का तकरीबन 9-10 लाख की आबादी का हल्का है जी डॉक्टर साहब का, मेरा 4.5 लाख की आबादी है जो एमपी की है। तो जितनी सहूलियात आ रही हैं वो अभी भी मैं कहता हूं जो बखर के 30 साल ज़ाया हुए हैं अभी भी वो नाकाफ़ी हैं। बहरहाल आपके ताउन का शुक्रिया भी अदा करते हैं और तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने, हमारे ग्रुप ने जो लोगों से वादे किए थे। आम बंदे और जो लीडर है उसमें क्या फ़र्क होता है? आम बंदे और लीडर में इस सोच का ही फ़र्क होता है। जो लीडर है वो 40-50 साल आगे सोचता है, आम बंदा आज का सोचता है, यही बुनियादी फ़र्क होता है। तो हमें लीडरशिप का शौक नहीं है, ये ज़रूर है कि मुझे और डॉक्टर साहब को ये शौक ज़रूर है कि हमने इस इलाके की खिदमत करनी है, कोशिश करनी है, मुखालफीन पे तनकीद कम करनी है, अपनी कारकर्दगी के ज़रिए ये साबित करना है कि हम में और उनमें क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है। तो बहरहाल तमाम दोस्तों को, इस इलाके के लोग मौजूद हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने वापडा के जितने भी एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं उनको और अहले इलाका को मुबारकबाद पेश करूँगा कि आज हम फेस्को सब डिवीज़न बेहल रोड पे दफ्तर का इफ्तिताह कर रहे हैं और ये ज़ाती बिल्डिंग है और अपना घर होना या अपनी बिल्डिंग होना ये बड़ी नेमत है। तो हालांकि कुछ दोस्तों का ये ख्याल था जो हमारे बहल के लोग हैं या नोतक के हैं कि ये दफ्तर हमसे दूर जा रहा है और हमारे लिए मुश्किलात होंगी। तो उनकी इस नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एहलकारों से, अफीसरान से ये डिस्कस किया, तो उसका फिर यही हल निकाला कि एक और हम सब डिवीज़न इंशाअल्लाह ताला जल्द बनवाएंगे जिसका दफ्तर नोतक और बेहल के दरमियान या कहीं ऐसी जगह पे होगा जहाँ इनके लिए वो अप्रोच इजी हो। और इनकी अप्रोच को इजी बनाने के लिए मैं आमिर अनैत खान का शुक्रिया अदा करूँगा कि हर तरफ से कारपेट रोड बनवा दिया उन्होंने। और मैं एक और गुजारिश भी करूँगा, मेरे वापडा के यहाँ भाई बैठे हैं माशाल्लाह, हमारे एसडीओ साहब जो हैं नहायत अच्छे अफसरों में इनका नाम है, मेहनती हैं, लोगों के साथ ताउन करते हैं। और इनको कहूँगा कि बस आप चक्कर चलो काम लगवाया करें, थोड़ा दूर हो गया है तो जो काम किसी का हो। असल बात यह है कि जब कोई सैल आपके पास आता है तो कोशिश होनी चाहिए कि उसके कम से कम चक्कर लगे। पेट्रोल भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो गई है और सारी महंगाई होने के साथ कुछ चोरी के वाक़यात भी बढ़ गए हैं। उस तरफ से भी जब कोई बंदा आता है जी मेरी डायरेक्ट तार लगी हुई थी जी तो हमारी सिफारिश करें, पहले तो बंदा सोचता है कि यार चोर की सिफारिश ना करे, फिर उसके हुलिये की तरफ देखता है बंदा कि यार गरीब आदमी है। तो मतलब महंगाई
अपनी जगह पे एक आंसर है, और बिजली का महंगा होना भी ये भी हकीकत है, क्योंकि अभी तक हमारा जो सर्कुलर डेट जो हमारा वापदा का है वो मुसलसल बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है कि वो 20 रुपए 25 रुपए पे बिजली बना के खरीद के कंपनियों से तो आगे आवाम को सस्ता दे रही है, तो वो बीच का जो गैप है वो कवर करना। मुआशी हालात जब से कोविड आया है, कोरोना, तो इसने पूरी दुनिया को जकड़ के रख दिया है। पूरी दुनिया की मईशतें, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनकी मईशतें सुकड़ के रह गई हैं। मैं इंग्लैंड अक्सर जाता हूँ, वहाँ पढ़ा भी हूँ, तो मैंने देखा था कि मैं वहाँ कोई 95-96 में गया था, आज से 25-30 साल पहले। फिर अक्सर जाते, हर साल जाता था 2-3 दफ़ा। तो उन्होंने कभी खाने पीने की चीज़ें महंगी नहीं होने दी, लेकिन उस दिन मैंने फ़ोन किया एक दोस्त को, कहते हैं यानी कि वहाँ दूध जो, अगर मैं जब 25 साल पहले गया था, जो केन 3.5 पाउंड का मिलता था, वो पिछले सालों तक भी 3.5 पाउंड का, लेकिन अब वही केन 7 पाउंड का हो गया, डबल हो गया हर एक चीज़ खाने पीने की। क्योंकि उनकी 10 तरस में भी, तरक्की याफ्ता मुल्कों की 10 तरस में भी ये नहीं रहा कि वो अपनी महंगाई कंट्रोल कर सकें, क्योंकि कोरोना ने इस दुनिया की जो मईशत थी उसको सुकेड़ के रख दिया। तो यही मजबूरियां हमारी हुकूमत की भी हैं, वरना कभी कोई हुकूमत नहीं चाहती कि मेरे मुल्क में महंगाई हो। हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है, वरना हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस महंगाई को भी कंट्रोल किया जाए, लेकिन उस में कामयाब होने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा, लेकिन अल्लाह ताला कामयाबी देगा। मैं इस दफ्तर के लिए और वापडा के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, सबसे पहले तो मैं अपने वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, फिर वजारत जो है हमारी बिजली की, एनर्जी की, उनका, और फिर CO फेस्को बशीर साहब, उन्होंने हमेशा ताउन किया है। उसके बाद हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो डिवीज़न है वहाँ ऐसी हमारा अपना घर का बखर का लगा है, कज़लबाज साहब, तो उसकी कोशिश होती है कि बखर का वो काम है तो वहाँ पे वक्त ना लगे, तो हम उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और हमारे एक्सीएन साहब मेरे दोस्त हैं, दाना पानी जब तक यहाँ लिखा है, तो बस हमारी कोशिश यही होगी कि हम गुजारिश करेंगे अमला से कि बखर की अवाम के लिए, हमारे बखर के अवाम, मैं हमेशा कहता हूँ, निहायत शरीफ नफ्स, अच्छे, सबमिसिव, ताउन करने वाले गरीब लोग, इनके साथ जितना आप ताउन करेंगे हम पे भी एहसान होगा और अल्लाह की तरफ से भी आपको अजर मिलेगा कि हमारे जो अवाम है, बखर के लोग हैं, इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। और लोगों से भी मैं कहूँगा कि वो भी महकमे के साथ ताउन करें, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो जब दोनों तरफ का ताउन होगा तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पैदा होंगी यहाँ पे। और मैं भाई असलम साहब के उस पर लबैक कहता हूँ, इंशाल्लाह जल्द से जल्द इनको हम क्रेन मंगवा के देंगे। क्रेन का फिर आपने भी जिक्र छोड़ दिया, हमारी यादाश्त में भी ना रही, तो बहरहाल ये आप फ़ौरन इसको यानी कि इसको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं जल्दी से जल्दी। और एक दफ़ा फिर मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा, तमाम हाज़रीन का, मीडिया के दोस्तों का, और ख़ास तौर पे वापडा के जो हमारे अहलकार यहाँ पे हैं, चौधरी सगीर साहब को बड़ी मुद्दत के बाद कहीं जब वापडा की तकरीब होती है तो देखना नसीब हो जाता है। हमारे नामी गिरामी अफीसर रहे हैं वापडा के और हमारे बड़े भाई हैं, तो उनको भी मैं यहाँ इस तकरीब में वेलकम करता हूँ। एक दफ़ा फिर मेरी अमला से गुजारिश होगी कि लोगों के जो काम किसी का होने वाला है वो फ़ौरन कर दिया करें, चक्कर कम से कम लगे, ताकि लोगों को सहूलत मिले। और हमारा मकसद भी यही है कि हम लोगों को सहूलतें बहन पहुँचाएँ। डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला और एक्सीएन वापडा आफ्ताब अली कुरैशी ने कहा कि अनकरीब बेहल सब डिवीजन के एक और दफ्तर का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिससे महकमा पर लोड कम हो जाएगा और आवाम को फौरी रिलीफ मुयस्सर आएगा। साथ ही कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, स्टार न्यूज़ नेटवर्क, भक्कर।